ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ 1500 ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ PSPCL ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ? 120 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ PSPCL ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ PSPCL ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ PDF ਨੋਟਸ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ Telegram ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ GK ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਕ ਵਿੱਚ 6 ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ GK ਦਾ 20 ਆਊਟ ਆਫ 20। ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈਗਾ PSPCL ਦਾ GK ਦਾ, ਸਟੈਟਿਕ GK ਦਾ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਜਰਨਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ GK ਦਾ 8th ਲੈਕਚਰ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾਓ। PSPCL GK ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ PSPCL ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਪਲਾਂਟਡ ਦ ਟਰੀ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਐਟ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਪਟਨਮ। ਟਰੀ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ? ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਟਰੀ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ, ਦੇਵਰਾਜ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟਰੀ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ? ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਸੂਰ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਗਰ ਆਫ ਮੈਸੂਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਸੂਰ ਟਾਈਗਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਚਾਰੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। The Jacobin Club of Mysore was the first revolutionary republican organization to formed in India। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਲੱਬ ਸੀਗਾ ਮੈਸੂਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਲੱਬ ਆਫ ਮੈਸੂਰ। ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1794 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਬਾਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ? ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਪਲਾਂਟਡ ਅ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟੀਪੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੀ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਟਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟੀਪੂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਲੱਬ ਆਫ ਮੈਸੂਰ। ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਲਰ ਹੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਹਿਸ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਜ਼। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਉਸ ਰੂਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿੰਗਡਮ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵਾ ਰਾਇਆ, ਰਾਜਾ ਰਾਜਾਜੀ ਟੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ? ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਸੀ? ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਰੂਲਰ ਆਫ ਦ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਡੈਸਟ ਸਨ ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਸਨ ਕਿਹਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਸੁਲਤਾਨ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਸਨ ਸੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਟੀਪੂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਕੋਆਇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਅ ਨਿਊ ਲੂਨਰ ਸੋਲਰ ਕੈਲੰਡਰ, ਨਿਊ ਰੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ which initiated the growth of Mysore silk industry। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਸਿਲਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। Who holds the post of chairman of ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ? post of chairman of ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਨ official who holds the rank of a cabinet minister, an economist of reputation। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ।
ठीक है, दैट इज पीएम नरेंद्र मोदी की ने अपने प्राइम मिनिस्टर जो कि की ने चेयरमैन ने नीति आयोग दे। नीति आयोग ने किस किनू रिप्लेस किया सी? प्लैनिंग कमीशन रिप्लेस करके की आई सी? नीति आयोग आई सी। द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबवैल्स इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबवैल्स किहड़ी कंट्री दे विच फाउंड हुंदे ने? इंडिया, साउदी अरेबिया, अमेरिका, चाइना। हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबवैल्स कित्थे हुंदे ने? इंडिया दे विच। हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबवैल्स कित्थे हुंदे ने? इंडिया दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉयल फाउंड इन द ईस्टर्न एंड द वैसटर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज? सॉयल किस तरह की मिट्टी पाई जाती है ईस्टर्न ते वैसटर्न कोस्ट ऑफ इंडिया दे विच? ईस्टर्न ते वैसटर्न कोस्ट ने जिहड़े इंडिया दे किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? रैड रॉकी, लेटरलाइट सॉयल, ब्लैक कॉटन, एलूवियल सॉयल। किस तरह की सॉयल पाई जाती है? लेटरलाइट सॉयल। किस तरह की? लेटरलाइट सॉयल। ठीक है, लेटरलाइट सॉयल की है इंडिया दे विच फाउंड कित्थे कित्थे हुंदी है? ईस्टर्न घाट्स ऑफ ओडिशा दे विच, सर्दन पार्ट्स ऑफ वैसटर्न घाट्स, मालाबार कोस्टल प्लेन्स, रत्नागिरी ऑफ महाराष्ट्र ते कुछ आंध्र प्रदेश दे भी, तमिलनाडु, कर्नाटका, मेघालय, वैसटर्न पार्ट ऑफ वैस्ट बंगाल दे विच। ठीक है, लेटरलाइट सॉयल जगह के नाम याद रखना हमेशा। कित्थे होंदा है ना क्वेश्चन सीधा आंदा, मेघालय विच किस तरह की सॉयल पाई जाती है? लेटरलाइट सॉयल। ओडिशा विच लेटरलाइट सॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल डे एंड नाइट इज इन बोथ हेमिस्फेयर इज ऑन? देखो उन्होंने कि इक्वल डे और नाइट बोथ हेमिस्फेयर दे विच कदों होंदी है? मतलब दिन ते रात के होंदे ने बराबर दे होंदे ने। बोथ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर किहड़े ने? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ते सर्दर्न हेमिस्फेयर विच इक्वल डे एंड नाइट कदों होंदी है? 21 जून कि 21 एंड 21 मार्च, 5 जुलाई एंड 21 सितंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। डी ऑप्शन 5 जून एंड 21 सितंबर। इक्वल डे एंड नाइट कदों होंदी है? कदों होंदी है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर नूं। 21 मार्च ते 23 सितंबर नूं की हुंदी है? इक्वल डे ते नाइट हुंदी है। तो उस दिन की किया जाता है? इक्विनॉक्स किया जाता है। की किया जाता है? इक्विनॉक्स। दैट इज इक्विनॉक्स मतलब इक्वल नाइट या फिर इक्वल डे भी किया जाता है, गिविंग द इंप्रैशन दैट नाइट एंड डे ऑन द इक्विनॉक्स आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम लेंथ। तो 2 साल होंदी है हर साल, 21 मार्च ते 23 सितंबर नूं की हुंदा वा? इक्विनॉक्स हुंदा है। क्वेश्चन इदां भी आ सकदा है, इक्विनॉक्स किस दिन हो सकदा है? इक्वल डे या नाइट की बजाय आ जाएगा इक्विनॉक्स किस दिन हो सकता है? किस दिन हुंदा वा? 21 मार्च ते 23 सितंबर नूं। इक्विनॉक्स किस दिन हुंदा वा? 21 मार्च ते 23 सितंबर नूं हर साल। ठीक है, प्रयाग इज द कैपिटल सिटी ऑफ? प्रयाग की कैपिटल सिटी है? पैरिक इज द कैपिटल सिटी ऑफ। ठीक है, कोई प्रयाग कहेगा, कोई पैरिक कहेगा। ठीक है, तुसी जो भी कहना कह लो। ठीक है, बस आंसर याद रखना। पैरिक की कैपिटल सिटी है सऊदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, नन ऑफ द अबव। सऊदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया, चेक रिपब्लिक, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, कि कैपिटल हैगी है? कि कैपिटल है? चेक रिपब्लिक दी। कि कैपिटल है? चेक रिपब्लिक दी। पैरिक इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी, यह भी याद रखना। पैरिक लार्जेस्ट सिटी है चेक रिपब्लिक दी। ठीक है, 14th लार्जेस्ट सिटी है यूरोपियन यूनियन दे विच एंड ऑल्सो द हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ बोहिमास। बोहिमा दी की है कैपिटल रह चुकी हुई है। क्वेश्चन आ जाएगा बोहिमा दी कैपिटल दैट इज पैरिक, जो कि कितने? चेक रिपब्लिक दे विच। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, यह क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक? की हो जाएगी? पैरिक। ठीक है, कैपिटल तो क्वेश्चन कैपिटल्स तुहानू हर कंट्री की पता होनी चाहिए, हर इंपॉर्टेंट आप एक लैक्चर के डिस्कस कर लवेंगे कैपिटल्स, एक विच डैम्स एंड रिवर्स। जे तुसीं चाहते हो इस तरह आप एक टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट करिए तो कमेंट बॉक्स में वध तो वध कमेंट करके दसो। ठीक है, तुहाडे रिस्पोंस ते तुहाडे कमेंट उत्ते करेगा कि असीं की है टॉपिक वाइज शुरू कर दिए कि ना करिए। ठीक है जी, अगे वधिए हुण। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सैशन एट द कैलगटा इन 1906? किहड़े लीडर ने की कीता सी? प्रिसाइड कीता सी कांग्रेस दा सैशन कैलगटा दे विच 1906। हुण 1906 विच सैशन कित्थे होया सी? कैलगटा दे विच पहला। ठीक है, INC दे सैशनस होए सी ना,
इन्हां दा मैं एक टेबल तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ प्रोवाइड कर देवांगी। ठीक है, किद्दां टेबल किद्दां प्रोवाइड करवा देवांगी, एक टेबल बना देंगे, ईयर लिख देवांगे, प्लेस लिख देवांगे, प्रिसाइड किन्ने किता सी ते उहदे विच इंपॉर्टेंट चीज़ां की होईयां सी उस ईयर दे विच। ठीक है जी, उस दिन असीं सारे INC दे कांग्रेस दे सैशनस की डिस्कस कर लवांगे जदों साडी टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट होएगी, जे तुसीं चाहुंदे हो। ठीक है, किहड़े लीडर ने प्रिसाइड किया 1906 का कैलकटा सैशन? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरबिंदो घोष, दादा भाई नरोजी। हाँ जी, किहड़े लीडर ने किया सी? दादा भाई नरोजी ने। 1906 का कैलकटा का सैशन दादा भाई नरोजी द्वारा की सी प्रिसाइड किया गया सी। ते उस टाइम की होया सी, इंपॉर्टेंट की होया सी कैलकटा के 1906 के सैशन के विच की होया सी जदों दादा भाई नरोजी ने प्रिसाइड किया सी, अडॉप्ट की किया सी स्वराज एज द गोल ऑफ द इंडियन पीपल, कि सानू की चाहिए? स्वराज चाहिए। उस टाइम साडा गोल की बनाया गया सी? स्वराज पाना। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चीज़ां सिर्फ आप इंपॉर्टेंट सैशन ही करने जिन्हां विच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां होईयां सी। द प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस सैशन ऑफ 1895 एंड 1902 वॉज, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1895 ਤੇ 1902 ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ, 1895 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1902 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਿਊਮ ਦੁਆਰਾ, ਤਿਲਕ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ, SN ਬੈਨਰਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? SN ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? SN ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਫਸਟ ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नैशनल कांग्रेस वॉज रिटन बाय, ਜਿਹੜੀ इंडियन नैशनल कांग्रेस की पहली जी ऑफिशियल हिस्ट्री जी लिखी गई सी किहदे द्वारा? सीता रमाया, PN पांडे, RC मंजूदार, मघुमदार, तारा चंद। किहदे द्वारा लिखी गई सी पहली ऑफिशियल हिस्ट्री INC दी? किहदे द्वारा लिखी गई सी? किहदे द्वारा लिखी गई सी? प्रताप भाई सीता रमाया द्वारा। सीता रमाया द्वारा। ठीक है, सीता रमाया कौन सी? असली नाम की सी? डॉक्टर बोजा राजू प्रतापी सीता रमाया। कित्थे बोन सीगे? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट दे बोन सी, आंध्रा प्रदेश दे। सिंपल याद रखना, आंध्रा प्रदेश दे। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस दे विच एक्टिविटीज़ दे पॉलिटिकल लीडर रहे ने, आंध्रा प्रदेश की स्टेट तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने ने की सी? पहली फस्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस लिखी सी। की लिखी सी? ही रोट द फस्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। द करंसी कन्वर्टेबिलिटी कॉन्सैप्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज ओरिजिनेटेड इन, जो करंसी कन्वर्टेबिलिटी कॉन्सैप्ट है कित्थों दी ओरिजिनेट किया गया है? टेलर एग्रीमेंट तो, वेल्स एग्रीमेंट तो, ब्रैटन वुड एग्रीमेंट्स ते साइमंड्स एग्रीमेंट। कित्थों दी किया गया है? ब्रैटन वुड एग्रीमेंट तो। कित्थों किया गया है? ब्रैटन वुड एग्रीमेंट तो किया है करंसी कन्वर्टेबिलिटी कॉन्सैप्ट। ब्रैटन वुड एग्रीमेंट है की है? ब्रैटन वुड एग्रीमेंट की है लैंडमार्क सिस्टम है फॉर मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, जो कि एस्टैबलिश्ड होया सी 1944 दे विच। कदों? 1944। ईयर भी याद रखना, ब्रैटन वुड एग्रीमेंट कदों आया? 1944 दे विच। उन्हें की किया? डेवलप किया यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनैंशियल कॉन्फ्रेंस, जो कि ब्रैटन वुड दे विच हुई न्यू हैमिसफेयर 1 जुलाई तो 22 जुलाई तक 1944। करंसी कन्वर्टेबिलिटी कॉन्सैप्ट की सी? करंसी कन्वर्टेबिलिटी कॉन्सैप्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज ओरिजिनेटेड इन द ब्रैटन वुड एग्रीमेंट दे विच। ठीक है, इंडिया हैज़ चेंज्ड ओवर द डेसिमल सिस्टम ऑफ क्वाइनेज इन, इंडिया ने अपना डेसिमल सिस्टम नू चेंज किया सी किस साल दे विच? इंडिया ने अपना डेसिमल सिस्टम नू चेंज किया सी किहड़े साल दे विच? अप्रैल 1958, अप्रैल 1959, अप्रैल 1995, अप्रैल 1957, अप्रैल 1958, 1959, 1995 एंड 1957। इंडिया ने कदों चेंज ओवर किया सी अपना डेसिमल सिस्टम? कदों किया सी? अप्रैल 1957 दे विच। कदों किया सी क्वाइनेज सिस्टम की डेसिमल की चेंजिंग? अप्रैल 1957 दे विच। वॉट डज द साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट मीनस? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का की मतलब होंदा है? अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशन फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, डिस्किस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट।
हाँ जी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का की मतलब हुंदा अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसैशनरी फेज ऑफ ट्रेड साइकिल। कदों? जो रिसैशनरी फेज हुंदा वा ट्रेड साइकिल का। पूरा मीनिंग अनएम्प्लॉयमेंट की है, फैक्टर है ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि रिलेट करता है टू द रेगुलर अप्स एंड डाउनस और साइक्लिक ट्रेंड्स इन ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। ग्रोथ ते प्रोडक्शन विच किहड़े साइक्लिक ट्रेंड्स है जो कि बिजनेस दे विच अकर होंदे ने। जो बिजनेस साइकल्स के होंदे ने एट देयर पीक्स द साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट विल टेंड टू बी लो बिकॉज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट इज बीइंग मैक्सीमाइज्ड। ठीक है, जो बिजनेस साइकिल की अपने पीक उत्ते होंदे ने, मतलब सब तो उपर होंदे ने, उदों की है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की हो जाती है, सब तो घट जाती है। ठीक है, कई बार इकोनॉमिक का भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन इकोनॉमी के पूछे जाते हैं, तो आप ये कवर कर लेने, ये ही उम्मीद है सानू आएंगे जो आप तुहानू करा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनस रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। किहड़े रीजन विच की है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ही रहिंदी है? टुंड्रा रीजन, मॉनसून, मैडिटेरियन, इक्वेटोरियल रीजन। किहड़े अर्थ दे इहो जिहे किहड़े रीजन ते पूरा साल ही रेनफॉल हुंदी है? किहड़े रीजन ते हुंदी है? इक्वेटोरियल रीजन ते की है पूरा साल की है रेन हुंदी रहिंदी है। नहीं कि लगातार मतलब आंदी जांदी रहिंदी है, उत्थे मतलब बारिश पूरा साल ही हुंदी है, कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है, पूरा साल ही बारिश हुंदी रहिंदी है। ठीक है जी। विच क्रॉप वॉज फस्ट कल्टिवेटेड इन श्रीलंका अंडर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। श्रीलंका दे विच सब तो पहला क्रॉप किहड़ा कल्टीवेट किया गया सी? श्रीलंका दे विच फस्ट क्रॉप किहड़ा कल्टीवेट किया गया सी? कॉफी, टी, रबर, कोकोनट। किहड़ा किया गया सी? कॉफी। कॉफी की है फस्ट कल्टीवेटेड इन श्रीलंका अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन इदा भी आ सकता है, कॉफी वॉज फस्ट कल्टीवेटेड अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन विच कंट्री? तो की हो जाएगा? श्रीलंका उसका आंसर हो जाएगा। लैक्चर पसंद आ रहा है, सीरीज वधिया लग रही है PSPCL की? हाँ जी दसो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्ट वाटर लेक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸॉल्ट वाटर लेक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्ट वाटर लेक? कैप्सियन सी, लेक बैकाल, ग्रेट सॉल्ट लेक, लेक वैन। हाँ जी, केड़ा सॉल्ट वाटर लेक नहीं है? क्वेश्चन की है नहीं पूछा गया है, केड़ा नहीं है? लेक बकियाल की है, सॉल्ट वाटर लेक नहीं है। ऐ की है? फ्रैश वाटर लेक है। ऐ की है? फ्रैश वाटर लेक है, फ्रैश वाटर लेक है। ठीक है, लेक बैकाल बारे जानकारी ले लेंगे। बैकाल लेक बैकाल की लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। ऐ याद रखना, लार्जेस्ट की है बाय वॉल्यूम के तौर पर की है लार्जेस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड दे विच ते कंटेन की करता 22 to 23% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रैश वाटर सरफेस। ठीक है, इट कंटेन्स मोर वाटर दैन नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स कंबाइंड। तो डेप्थ कितनी है? 1642 की है डेप्थ है। तो बकियाल के वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है। अगर वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक तुहानूं पूछे जाए तो वो क्या हो जाएगा? लेक बकियाल। तो हैगा कित्थे है, किहड़ी कंट्री दे विच है? कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके तुसीं दसोगे। द कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन, आज दा लास्ट क्वेश्चन है, द कॉन्करेंट लिस्ट विच किन्ने आइटम्स ने? 47 आइटम्स, 52 आइटम्स, 66 आइटम्स, 97 आइटम्स। देखो साडियां 7th शेड्यूल के अंदर सानू की दित्तियां गईयां ने? 3 लिस्ट दित्तियां गईयां ने। की दित्तियां गईयां? 3 लिस्ट। पहली लिस्ट की है? यूनियन लिस्ट। दूसरी की है? स्टेट लिस्ट। ते तीसरी की है? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है जी, एक किहदे अंदर है? 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट ने मैंशन की है। टोटल शेड्यूल 12 ने, 12 च जिहड़ा 7th शेड्यूल आ उहदे विच 3 लिस्ट सानू दस्से गए ने, यूनियन, स्टेट ते कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लिस्ट विच किहड़े मैटर्स आंदे ने? वो मैटर्स आंदे ने जो ना कि यूनियन के अंडर आंदे ने ना स्टेट के अंडर आंदे ने। वो सारे मैटर्स किहड़ी लिस्ट विच पाए गए ने? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखे गए ने। ठीक है, किन्ने मैटर ने ये? 47 आइटम्स, 52 आइटम्स, 66 आइटम्स, 97 आइटम्स। आइटम्स जगह इत्थे मैटर भी लिखा हो सकता सी। किन्ने मैटर ने? 52 आइटम्स। ठीक है, जो 52 मैटर्स आप कह सकते हैं। ठीक है, ये देखो इत्थे सारा कुछ वही लिखा जो मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन ने की है 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है सबजैक्ट्स के उत्ते, सेंटर ते स्टेट विच। लिस्ट 1 विच की है? यूनियन लिस्ट।
ਲਿਸਟ 2 ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਲਿਸਟ 3 ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ 7 ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 100 ਸਬਜੈਕਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ 61 ਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ 52। ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ 100 ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 61 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 52 ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ। ਐਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ 8th ਲੈਕਚਰ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਪਸੰਦ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 8 ਦੇ 8 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਕੇ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਇਨਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PSPCL ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਮੈਥਸ ਦੀ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ, ਜੀਕੇ ਦੀ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਦੀ ਜੀਕੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ 6 ਵਜੇ ਨੇ, 8 ਵਜੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਥਸ ਦਾ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ PSPCL ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਜੀਕੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।